So, in the chapter intranasal drug delivery system, we have already studied the introduction and a bit basics. Now, let's continue with the nasal anatomy. एनाटॉमी के लिए आप इस डायग्राम में रेफ़र कीजिए. सबसे पहले हम बेसिक पार्ट्स देखेंगे जस्ट टू लेट द बेसिक नो द बेसिक एनाटॉमी. वी हैव हियर द nasal portion, and on the upper side it began with the frontal sinus. Then there were three turbinates. The three turbinates are inferior turbinate, middle turbinate and superior turbinates. These turbinate section is divided into these three parts. Then there is a vestibule. Below the vestibule, palates were there. The palates are divided as the hard palate and the soft palate. Then there is an opening of you can see that the auditory tube is there. The pharyngeal region, which is the tonsil part. Then there is sphenoid sinus. These are the important parts which the basic anatomy include. Here we will start with the anatomical features of nasal drug delivery system. The first point we will start is that the area which is covered by the nasal mucosa, its thickness is 2 to 4 mm. जो उसकी thickness है 2 to 4 mm है, जितना भी area वो cover कर रही है. And the total surface area जो है वो है about 180 centimeter square. This is the total surface area of the nasal cavity. Then the nasal cavity consists of both respiratory and olfactory mucosa. Means the respiratory part where the mucosa layer is present and the olfactory part where the mucus layer is spread up to. So both the part is considered in the nasal cavity area and helps to facilitate the drug absorption. The total volume of the nasal cavity considered to be 20 ml. This is the supposed to be volume, जो कि उन्होंने कहा है कि अप्रॉक्स 20 ml हो सकती है. pH की अगर हम बात करें, then the pH is nasal secretion in adults is 5.5 to 6.5 and infants और children की अगर हम बात करें then वो होता है 5 to 6. The pH is 5 to 6. Now let's move toward the next picture. This is another anatomy picture. Actually we have to see in this picture that both the front and the side part. तो हम देख लेते हैं कि जो पार्ट हमने मिस करे हैं उसमें. जैसे कि सबसे पहले इसमें आप देखिए जो फेरिंग्स एरिया डिवाइडेड है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. बिगिंस विद द नेज़ोफेरिंग्स, then the oropharynx, then the laryngopharynx. ये तीनों पार्ट मिलकर जो है पूरा फेरिंग्स एरिया कवर करते हैं. एंड देन द लैरिंग्स पार्ट, जहाँ तक आपका फेरिंग्स ख़त्म होता है और लैरिंग्स आता है वो पूरा पार्ट, इसीलिए वो जो लास्ट नेम है उसका नाम लैरिंजोफेरिंग्स है, बिकॉज जो लैरिंग्स का पार्ट है वो उसी एंड नोट पर रहता है. एंड लैरिंग्स एज यू नो इज़ द वॉइस बॉक्स. ये ऊपर वाला पार्ट आप देखेंगे तो देर इज़ एन यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग विच इज़ इनसाइड द वॉल. आप देख सकते हैं फेरिंग्स के साइड में. ये सारे पार्ट जो हैं आपकी बेसिक एनाटॉमी का हिस्सा है और इसी से जो है हम ये समझते हैं कि कैविटी किस तरीके से डिज़ाइन है, किस तरीके के एरियाज़ हैं, किस तरीके के पार्ट्स डिवाइड हैं और हम किस तरीके से जो हैं इन्हीं पार्ट्स को, जैसे कि कुछ म्यूकस एरिया है, कुछ ट्यूब्स हैं, कुछ फेरिंग्स पार्ट हैं, साइनस पार्ट है, ये किन किन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किए गए हैं, उसी बेसिस पर जो है हम आगे जब डिलीवरी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हमें बेसिक एनाटॉमी जो है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, ये इसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि जो है हमें ड्रग डिलीवरी को इजी और कन्वीनियंट बनाने में यही सब चीज़ें जो हेल्प करती हैं. तो इसके बाद हम एक क्लास पिक्चर और देख लेते हैं.
Let's move a bit inside the structure and ये पर्टिकुलरली दिखाने का मीनिंग इसीलिए है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है ये बल्ब्स डिवाइडेड हैं, जो अंदर जो बेसल सेल प्लेट्स हैं, जो डेंड्राइट हैं, ये बेसिक लेयर्स हैं। यहाँ पर म्यूकस लेयर किस तरीके से जो है एक्सपैंडेड है ये हम देख लेते हैं इसमें। You will see an olfactory bulb above and an olfactory epithelium just next to it। आप साइड में देखिए कि हमने olfactory bulb को जो है expanded version में देखने की कोशिश करी है। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो दिखेगी which is the glomerulus, then there are axon, next to it there is cribriform plate, next to the plate there is an basal cell layer which is the like an grounded structure जिसके ऊपर ही जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है। उसके भी नीचे अगर हम देखेंगे then we have the olfactory sensory neurons, the neuronal connection जो कि नीचे से लेकर ऊपर आपके एक्सॉन से होते हुए ऊपर तक गए हैं। उसके बाद है डेंड्राइट, जो लोअर पार्ट है उसका, उससे हम कहेंगे डेंड्राइट। डेंड्राइट के नीचे आपको सीलिया मिलेगा, जो बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सीलिया है, और वो जिस बेस पर है उसे हम देख रहे हैं इट इज़ द म्यूकस लेयर। सो जो हमें समझना है इससे वो ये है दैट द बेस इज़ ऑफ द म्यूकस लेयर, जो कि हम देख रहे हैं कि जो नोज़ कैविटी है उसकी जो लेयर है वो म्यूकस से बनी हुई है। म्यूकस लेयर जिसके ऊपर जो है आप ये ऑल्फैक्टरी बल्ब का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली कि अगर हम एक स्ट्रक्चर को इतने डिफाइन तरीके से देखते हैं तो हमें उसमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये इसीलिए था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कितना डिटेल स्ट्रक्चर ये है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से जो है डिलीवरी पॉसिबल है। ये एनाटॉमी समझने के बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं जिससे हम जो है हमारी डिलीवरी ज़्यादा सूटेबल कर सकते हैं। एनाटॉमी और इतने सारे डिटेल्ड फीचर्स देखने के बाद अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं। पहले हम ये जान लें कि एनाटॉमी समझी, स्ट्रक्चर देख लिया हमने, अब ये समझे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको ओवरकम करने के बाद जो है हम एक प्रॉपर और यूटिलाइज सिस्टम जो है बना सकते हैं, एक अच्छे डिलीवरी सिस्टम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देयर वर 3 इंटररिलेटेड पैरामीटर्स अफेक्ट द नेज़ल डिलीवरी परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं वो 3 पैरामीटर में सबसे पहला है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। कितना ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है रिक्वायर्ड है ताकि म्यूकस लेयर पे ना टॉक्सिसिटी हो ज़्यादा, ना उसकी सेंसिटिविटी जो है उसमें कोई इशू आए, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जिन पेशेंट को नोज़ से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शंस हैं या सेंसिटिविटी का कुछ भी इशू है तो हमें टारगेट करना है कि ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है इतना कम और सूटेबल हो कि इफ़ेक्टिवनेस भी उसकी कम नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी भी नहीं आनी चाहिए, और उसका एक्शन जो है वो उस अमाउंट में भी काफ़ी पोटेंट लगे, मतलब कि जो उसकी यूजेबिलिटी है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आफ्टर दैट देयर इज़ डोज, जो हम कह रहे हैं कि कितना डोज हमें इससे डिसाइड करना है, कितना अमाउंट जो है वो ज़रूरी है। इसके लिए आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे अगर हम नेज़ल स्प्रे सॉल्यूशंस को अगर हम रीएप्लीकेशंस के लिए देते हैं, अगर उसके इंडिकेशन में है कि वो बार बार इस्तेमाल हो, जिसकी वजह से जो है एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, डोज और कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस वाले वर्ड हैं, आप ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेशन वो चीज़ थी जिससे हमने ये देखा था कि कितना मिनिमम कंसंट्रेशन हमें चाहिए है अच्छे इफ़ेक्ट के लिए, और डोज में हम एक और चीज़ भी ध्यान रखेंगे इसके अलावा कि कितनी बार देने पर जो है हमें वो प्रॉपर कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो डोजिंग हम उस अकॉर्डिंग जो है
फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। और वैसे भी जो है सॉल्यूशन स्प्रे जो काफ़ी कन्वीनियंट हम अप्रोच समझ रहे हैं कंपैरिजन टू अदर लाइक ओरल एंड पेरेंट्रल, तो हम उसकी जो है फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी पेशेंट कंप्लायंस के अकॉर्डिंग उसको जो है बार बार सेट कर सकते हैं। थर्ड इज़ द डोज वॉल्यूम। एग्जैक्ट अगर हम बात करें कि स्प्रे या सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं और काफ़ी सेंसिटिव और अच्छे अगर हम डिवाइस की बात करें या कुछ डिलीवरीज की बात करें, तो वो फॉर्मुलेशंस होती हैं जो मीटर डोज होती हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि एक बार में जब हमें इतना डोज या इतना कंसंट्रेशन देना है तो उसका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जो है वो एक बार में ही डिलीवर हो पाए। स्पेसिफिक टू दैट हम जो है इन पैरामीटर्स को, काफ़ी इंटर रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, इनको जो है हम अगर ध्यान में रखें तो डिलीवरी सिस्टम जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। The next slide is of the absorption routes. Nasal drug absorption involve two type of route, which is paracellular is the first and transcellular is the second one. Here you can see that first is the paracellular route. The first point is it is an aqueous route of transport. The paracellular route considered to be an aqueous form, means you can deliver the aqueous form of drug with this particular route. So simplify for that particular drug or the particular group of molecules. This route is slow and passive. यानी अगर हम ये बात करें कि पैरासेलुलर रूट जो है वो कैसे जो है एब्जॉर्प्शन करता है, तो जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है वो पैसिव रूट से है और जो रूट है वो काफ़ी स्लो काम करता है। देन अगर हम इसकी बायोएबिलिटी की बात करें तो वो कंपैरेटिवली पुअर है, जो कि अगर हम ड्रग के केस में देखें कि क्योंकि अगर हम ये देखें कि ड्रग्स जो हैं वो थोड़े लिपोइडल फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं और उसकी जो अगर एरिया और उस तरीके का फिजिबिलिटी ज़्यादा है, तो एक्वस के फॉर्म में जो है ड्रग को थोड़ी सी चैलेंज हैंडल करनी पड़ती है। नेक्स्ट टू दैट अगर जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट अगर 1000 डाल्टन से ज़्यादा है, देन फिर अगेन हमें जो है ड्रग के साथ काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है ताकि हम उसे सूटेबल डिज़ाइन कर सके इंट्रानेज़ल डिलीवरी के लिए। अब ये सारे पैरामीटर से हमें ये पता चल गया कि अगर हम पैरासेलुलर रूट से टारगेटिंग करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स ऑकर होती है वो है उसका साइज़, उसका वेट एंड बायोएबिलिटी। टारगेट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो एक्वस सॉल्युबल ड्रग है, अगर उसके लिए एक्वस जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा फीजिबल है, देन फिर हमें इससे जो है काफ़ी बेहतर तरीके से बनाना पड़ेगा, जिसमें चैलेंजेस जो हैं वो एक्चुअली ये हैं कि हमें उसे इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो अगर उसे ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करना रहे तो उसके लिए उसकी लिपोफिलिसिटी जो है थोड़ी इम्प्रूव हो सके। तो ये सब डिज़ाइन सिस्टम में हमें जो है रिमार्क लगाने हैं कि हमें इसी तरीके से बनाना है। ट्रांससेल्युलर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इसमें जो है ये फॉलो करता है लिपोइडल रूट, जो कि हम जानते हैं ज़्यादा फिजिबल है ड्रग मॉलिक्यूल के लिए इस रूट से ट्रैवल करना, एब्जॉर्ब होना, तो इसमें जो है हमें एब्जॉर्प्शन पैटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। देन दिस रूट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ लिपोफिलिक ड्रग दैट शो अ रेट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन देयर लिपोफिलिसिटी। ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसका ट्रांसपोर्ट, लिपोफिलिक ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो वो है उसकी लिपोफिलिसिटी। जितनी ज़्यादा लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है उतना जो है उसका प्रोसेस है जो एब्जॉर्प्शन का ट्रांससेल्युलर पाथवे से वो काफ़ी इम्प्रूव्ड और बेहतर होता है। नेक्स्ट टू दैट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि एग्जाम्पल है चीटोसन पॉलीमर का, कि इट इज़ अ नेचुरल बायोपॉलीमर फ्रॉम शेलफिश open tight junction between the epithelial cell to facilitate the drug ट्रांसपोर्ट। जो टाइट जंक्शन होता है सेलुलर स्ट्रक्चर का उससे ये इजीली एपिथेलियल सेल्स के बीच में उसकी ओपनिंग क्रिएट करता है और उस जंक्शन के बीच में से जो है ड्रग का ट्रांसपोर्ट काफ़ी इजीली फैसिलिटेट करने की कोशिश
करता है. सो दिस इज अबाउट द ट्रांससेल्युलर प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू नेजल रूट. नाउ आफ्टर स्टडिंग बोथ पैरासेल्युलर एंड ट्रांससेल्युलर रूट, हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो है डिवाइसेस को स्मार्ट डिज़ाइन करने के लिए हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन काम आती है. इनमें ये भी ज़रूरी है कि जो डिज़ाइनिंग है उसमें अगर हम पाउडर, सॉल्यूशन, जेल, हम किस फॉर्म में उसका डोसेज फॉर्म क्रिएट करते हैं, उससे भी जो है हम काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और हमें उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम टॉक्सिसिटी कम करना चाहते हैं या अगर हम ये चाहते हैं कि परमिशन एनहांसर्स के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो कैसे इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं.